স্বাগতম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। মোদীজি স্বাগতম। পূর্ব মেদিনীপুরের পুণ্যভূমিতে মোদীজি স্বাগতম। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর পুণ্যভূমিতে মোদীজি স্বাগতম। মোদীজি লা প্রণাম। মোদীজি স্বাগতম। বন্দে মাতরম। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় নেতা, আমাদের গর্ব যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় মোদীজি। আমি অনুরোধ করছি আপনারা করতালির মাধ্যমে ওনাকে অভিনন্দিত করুন। যিনি ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে, যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। মোদীজি স্বাগতম। মোদীজি স্বাগতম। মোদীজি স্বাগতম। এখন আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী, লোকপ্রিয় নেতৃত্ব সম্মানীয় মোদীজিকে বরণ করে নিচ্ছেন শুভেন্দুদা। আমাদের মেদিনীপুরের বীরপুত্র শুভেন্দুদা তিনি বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের জেলা সভাপতিদ্বয়। আমাদের মা বর্গভীমার মূর্তি দিয়ে আমাদের জেলা সভাপতি দয় মলয় দা এবং সোমনাথ দা বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের বিভাগের কনভেনার নীলাঞ্জন দা রাম, সীতা এবং হনুমান সেই মূর্তি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে। আমাদের প্রার্থীরা 14টা বিধানসভার প্রার্থী, আমাদের সমস্ত প্রার্থীরা বরণ করে নেবেন, বড় মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন। আমাদের শুভেন্দুদা, ডক্টর হরে কৃষ্ণ বেরা, অশোক দিন্ডা, সুভাষচন্দ্র পাঁজা, ডক্টর পীযূষ দাস, সুমিতা সিনহা, সুব্রত পাইক, চন্দ্রশেখর মণ্ডল, সুব্রত মাইতি, নির্মল খাড়া, প্রদীপ বিজলি, তপন মাইতি, শান্তনু প্রামাণিক, অরূপ দাস। আমাদের বিজেপির 14টি বিধানসভার মনোনীত প্রার্থীরা আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিচ্ছেন বড় পদ্ম ফুলের মালা দিয়ে। আমরা কথা দিতে পারি যে আমরা এই পূর্ব মেদিনীপুরের এই 14 জন বিধায়ককে আমরা জিতিয়ে আনব। আমরা সবাই মোদীজিকে উপহার দেব পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 16টা আসন। এখন আমি অনুরোধ করব আমাদের জনপ্রিয় নেতা, মেদিনীপুরের বীরপুত্র, রাজনীতির রাজপুত্র, আমাদের নয়নের মণি সম্মানীয় শুভেন্দুদাকে তার স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम। माता काली के, मां बर्ग भीमा के। सम्मानित विश्वेर सर्वश्रेष्ठ जनप्रिय नेता, भारतवर्षेर शक्तिशाली प्रधानमंत्री, जार नेतृत्वे पश्चिमबंगे एबारे परिवर्तन आसबे। आगामी 5 बछर जार नेतृत्वे पश्चिमबंगे
উন্নয়ন প্রগতি সুশাসন সুরক্ষা পাবে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি পূর্ব মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ থেকে কাঁথি তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই। আমাদের দুই সাংসদ আছেন, এক্স জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি তমলুক, সৌমেন্দু অধিকারী কাঁথি। আমাদের দুজন জেলা সভাপতি আছেন যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে 4 দশকেরও বেশি সময় কাজ করছেন। তমলুকের সভাপতি অ্যাডভোকেট মলয় সিনহা, কাঁথির সভাপতি শিক্ষক সোমনাথ রায়, বিভাগ কনভেনার ভাতৃপ্রতিম নীলাঞ্জন অধিকারী, অন্যান্য প্রার্থী এবং সকলকে ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, এত বৃষ্টি এবং দুর্যোগের মধ্যেও আমাদের মধ্যে পৌঁছেছেন, তার জন্য বিশেষভাবে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। উনাকে আমাদের বেশিক্ষণ আটকে রেখে লম্বা ভাষণ দেওয়া যাবে না, কারণ আজকে উনার কথা আমরা শুনব। উনি এখান থেকে সিউড়ি এবং আসানসোলে আরো 2টি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করবেন। আমি গণদেবতা জনতা জনার্দন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি, রাষ্ট্র প্রথম নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তা নাগরিকগণকে আগামী 23শে এপ্রিল এই জেলায় প্রথম দফার নির্বাচন হচ্ছে। এই জেলায় প্রশাসনিকভাবে 16টা আসন, 16টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের প্রার্থীদের निर्वाचित करार विनम्र आवेदन जनाई। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जिला में पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी 16 जो सीट है 15 पर भाजपा आगे थी। हमारी 2 एमपी जीता और ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का वोट परसेंटेज 49% है। मैं मानवर नेता को मैं बताना चाहता हूं, इस बार 15 नहीं 16 में ही कमल खिलेगा और 55% वोट भाजपा को मिलेगा। मैं आभार प्रकट करता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में इस तरीके से मौसम खराब थे, इसलिए आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, आप वर्चुअल भाषण दिया। तमलुक क्षेत्र में 80,000 वोट में एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली जीत के हम लोग दिल्ली भेज दिया। 50,000 वोट से सौमेंदु अधिकारी को चुनाव जीता के हम लोग पार्लियामेंट भेज दिया। इस बार आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप स्वयं आया है, इसलिए इस बार आपको 16 सीट हम लोग देगा। আপনারা সবাই হাত তুলে বলুন পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার। চাকরি চাই, বিজেপি তাই। শিল্প চাই, বিজেপি তাই। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চাই, বিজেপি তাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডের সবাই বলে গেছেন सबका साथ सबका विकास तो होगा और सबका हिसाब भी होगा। पोस्ट पोल वायलेंस से 300 बीजेपी कर्मी के मेरेছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মেরেছে। আমরা ভুলিনি, এবারে সরকার আসবে মোদিজির নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় আসল পরিবর্তন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে বলে গেছেন সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ
এর গৌরব হারিয়ে গেছে। বিজেপিকে আনুন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে বাংলার গৌরব আমরা ফেরাবো। গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। আমরা জিতব, আমরা জিতব। আর মাননীয় মোদিজি, বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নীতিন নবীনজি আমাকে বলেছেন নন্দীগ্রামে তো তোমাকে জিততেই হবে, আর ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার হারাতে হবে। আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি ভবানীপুরেও করে দেখাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার নেতা নরেন্দ্র মোদীজি। সবাই ভালো থাকুন। ভারত মাতা কি জয়। জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ জানাই আমাদের জনপ্রিয় নেতা শুভেন্দু দাকে। এখন আমি আহ্বান জানাবো, আজকে আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীজি তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি অনুরোধ করব তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন, অনুপ্রাণিত করবেন। বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে। মোদিজি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ साथी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं मेरे एसपी जी के साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो चित्र लेके आए हैं वो कलेक्ट कर ले। अगर उसमें आपका एड्रेस होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा एक दूसरी प्रार्थना है, इस चुनाव में यहां जो कैंडिडेट है उनसे मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट में आकर के अपनी बात बताता हूं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। केमन आछि पूर्व मेदिनीपुरबासी? सबसे पहले मैं बरग भीमा शक्तिपीठ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि यहां लगातार बारिश होती रही है। नीचे मैं देख रहा हूं सब दूर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है।
भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है। नीचे जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त
एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब भय से नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी। और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा
इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो, और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये
टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में, ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है, तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है। ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। साथियों, बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें,
इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। इससे धान किसानों को, आलू किसानों को, पान किसानों को, सब किसानों को फायदा ही फायदा होगा। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हल्दिया को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का, ब्लू इकोनॉमी का भी बड़ा केंद्र बनाएगी। अभी यहां हल्दिया पोर्ट पर, हल्दिया से बनारस तक, गंगा जी पर बन रहे वाटरवे पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। डबल इंजन सरकार बनने से ये सारे काम और तेजी से पूरे होंगे। साथियों, ये मातंगिनी हाजरा जी की धरती है। उन्होंने वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए देश के लिए अपना जीवन दे दिया था। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन संकट में डाल रखा है। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में रैप होते हैं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वकील बनने जाए तो उसके साथ अत्याचार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वही लोग टीएमसी को वोट दिलवाते हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। मैं पश्चिम बंगाल की हर माता, बहन, बेटी से एक ही विनती करना चाहता हूं, जान और मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। बीजेपी वेलफेयर भी देती है, लखपति दीदी भी बनाती है, लेकिन बीजेपी जहां भी है बहनों, बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन देती है।
आपका प्यार मेरे सरोखों पर, वो माता जी इस आयु में भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। माता जी, आप कहीं चोट न लग जाए आपको। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है माता जी, कहीं आपको चोट न लग जाए, आप गिर न जाए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप इतनी बारिश में भी यहां और इतना ऊंचा खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं ये बंगाल का प्यार भूल नहीं सकता हूं। ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, हम हर मां, बहन, बेटी को सम्मान देना चाहते हैं। यही हम बंगाल में करना चाहते हैं। इसलिए हर बहन बेटी का मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे इन साथियों को आशीर्वाद दीजिए। साथियों, गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने, ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां
7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। साथियों, इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और साथियों, जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে। আমরা অভিভূত, আমরা আনন্দিত, আমরা গর্বিত যে এত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করেও তিনি আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। আমরা তার মূল্যবান পরামর্শ আমরা পালন করব। আমাদের প্রিয় নেতা শুভেন্দুদা আমাদের জেলা থেকে 16টা পদ্ম মোদিজিকে উপহার দেবেন।